Good morning, students. Welcome back once again. So, here this is the part 2 of Unit 3 Festivals, the Colors of Human Life. In our previous lecture, we have studied a number of festivals which we are celebrating throughout the years. Festivals breaks the boredom from our day-to-day life and add colors to our routine lives. Festivals are occasion to celebrate some natural phenomena, season, historical, social, political, environmental, personal, cultural, traditional or agricultural significance. Means each and every festivals have their own importance. Just for an example, various days of importance from local to international levels are celebrated throughout the years. We have already discussed a lot related to there are festivals are divided into many categories. Festivals को क्या होता है, बहुत सारी categories में divide किया गया है. Just for an example, some festivals we are celebrating as a social festival, some are public festivals, some are religious festival and some are social festival, etc. So we have already studied a number of festivals like Independence Day, which was celebrated on 15th August, and it is a national festivals. Beside this, what is the importance of these celebrating these festivals? इन सब festivals को celebrate करने का क्या importance है? हर festivals को सेलिब्रेट करने का अपना अपना क्या होता है, एक मकसद होता है. जैसे इंडिपेंडेंस डे हम लोग अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं. उसका इम्पोर्टेंस है ये है कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त एंड from that onwards we have started celebrating Independence Day. So beside this, we have already seen the Hindi or Janmashtami festival, which it is a religious festival celebrated in Mumbai, Pune and most of all over the India. And we have already seen Holi, Dashera, Eid, Baisakhi and Durga Puja. These all are the festivals are having their own significance or importance. ईद का इम्पोर्टेंस अलग है. ये पवित्र एक महीने जो फास्ट किया जाता है रमज़ान महीने के बाद, एक होली मंथ होता है फास्टिंग का ख़त्म होने के बाद, और चांद देख करके बोला अपना क्या करते हैं, फास्ट तोड़ते हैं. वैसे बैसाखी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें क्या किया जाता है, वो एक पंजाबियों का न्यू ईयर भी समझा जाता है और ये बेसिकली पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है. यूजुअली ये अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में पड़ता है. सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन and we have already done one exercise in which we have completed that some expression of greetings based on the occasion. तो बर्थडे पे हम लोग क्या बोलते हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज पे क्या बोलते हैं, गुड रिजल्ट्स आए तब क्या बोलते हैं, और प्रमोशन हो तब क्या बोलते हैं. वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हुए चलते हैं. नाउ we are moving ahead the activity 2. So activity 2 is like that, as we are writing letters to our friend, it is just like that कि आपको एक फ्रेंड जो है उसने अपने एक दूसरे फ्रेंड को क्या लिखा है, एक लेटर लिखा है, in which he describe how they celebrated their न्यू ईयर. कि आपने जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया वैसे ही उन दोनों फ्रेंड्स ने अपना अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे किया. द प्रेजेंट जनरेशन स्पेशली द यंग make more use of cell phones and computers. Nowadays we are mostly using our cell phones and computers to deliver any messages or greetings. Basically आज किसी का बर्थडे भी होता है या कोई भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन या कोई भी फेस्टिवल होता है, हम लोग कॉल करने की अपेक्षा क्या करते हैं, हम लोग फ़ोन कॉल्स का यूज़ करते हैं या ईमेल्स या व्हाट्सएप के थ्रू या और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके क्या करते, वेल विशेस सेंड करते थे. देयरफॉर राइटिंग लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इज ग्रेजुअली फॉरगॉटन. इट मीन्स नाउ डेज राइटिंग लेटर बिकम्स अ ड्रीम.
अभी लेटर लिखना कोई भी नहीं चाहता है, सब फास्टेस्ट वे क्या कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या आते, आजकल जितने भी रिलेशनशिप है, तो जितने भी फ्रेंड्स को लेटर लिखे जाते थे, वो सब आदमी भूल गए हैं। इट मीन्स इनडायरेक्ट वे द लेटर्स बिकम एबोलिश्ड। लेटर्स का क्या हो गया, लेटर्स आदमी लिखना ही बंद कर दिया है। नाउ हेयर टू पेन फ्रेंड्स, what are their names, Bharat and Jamshed, exchange letters describe how they celebrate their new year day. It means here two pen friends. What do you mean by two pen friends? Two pen friends का मीनिंग ये होता है person with whom one builds a friendship by exchanging letters. It means वो लोग अपनी बातों और एक्सप्रेशन या कोई भी चीज़ों का क्या करते थे, लेटर्स के थ्रू ही एक्सप्रेस करते थे। इट मीन्स वो एक दो पेन फ्रेंड्स थे, वो अपनी हर चीज़ें अपने लेटर्स के थ्रू ही एक्सचेंज करते थे, अपनी एक्सप्रेशन, अपने सेलिब्रेशन, अपने थॉट्स एक्सेट्रा। So how they celebrate, what they have contained in the letter, they are describing how they celebrate their new year. Now what they are included, what they are writing in the letters, they are describing their new year days celebrations, their thoughts, and how they have celebrated their particular न्यू ईयर डे। इट मीन्स जो भी है उन्होंने अपना सेलिब्रेशन कैसे किया, क्या उन्होंने प्रिपरेशन की, इवन क्या उसका बेनिफिट्स था, और उन्होंने अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन से रिलेटेड क्या बातें कहीं, ये सब उसमें लिखा है। सो नाउ वी आर मूविंग हर टू two pen friends Bharat and Jamshed. Here the first letter is addressing to भरत। भरत को लिखा जा रहा है किसके द्वारा, जमशेद के द्वारा, यानी जो फर्स्ट लेटर है वो भरत को लिखा जा रहा है, जमशेद लिख रहा है जो उसका फ्रेंड है ना। हियर जमशेद हैज रिटन हिज एड्रेस, दैट इज 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, 15 नवंबर 2007। नाउ जो जमशेद है उसने अपना एड्रेस लिखा है, क्या एड्रेस है, पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, और डेट लिखी है 15 नवंबर 2007। नाउ वी आर स्टार्टिंग, डियर भरत, आई हैव नॉट हर्ड फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे हम लोग पत्र के स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, वैसे ही यहाँ पे है कि मतलब बहुत दिन हुए तुमसे बात नहीं हुई। आई होप यू आर fine. It means Jamshed is telling to Bharat, I hope you all are fit and fine. 2 months back you had asked me how we celebrate our New Year's. Jamshed is telling and giving his description or reply that 2 months before you have asked me how we celebrate our New Year. जैसे ही जमशेद ने बताया कि 2 महीने पहले ही तुमने पूछा था कि हम लोगों ने अपना न्यू ईयर कैसे बनाया, बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज़ और पतेती आवर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सो जैसे ही तुमने पूछा कि कैसे हम लोगों ने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, बट आई वॉज लिटिल बिजी, बट जमशेद वॉज लिटिल बिजी इन हिज फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज़ और पतेती। वो टेस्ट के लिए भी क्या था, बिज़ी था, और इवन नवरोज़ और पतेती जो उनका न्यू ईयर फेस्टिवल होता था पारसियों का, तो उसके भी वर्क में या और अदर प्रिपरेशन में वो का क्या था, बिज़ी था। वी पारसी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्लियर जैसे कम्युनिटी होती है वो बताता है कि वी पारसीज आर अ स्मॉल कम्युनिटी, हम पारसी एक क्या है, बहुत छोटी सी कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स क्या होता है, बहुत जनसंख्या में न होना, बहुत छोटी जनसंख्या होना, स्मॉल कम्युनिटी होना, बहुत सारे लोग होने। जैसे हिंदू कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वैसे ही साउथ इंडियंस भी एक कम्युनिटी है, लेकिन वो एक तरह से एक पूरा कल्चर है, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने बहुत जनसंख्या भी है, बहुत जगह उनका सेटअप भी है। इवन पारसीज की क्या है, कम्युनिटी एक स्मॉल है, वो
कम्युनिटी इन द सेंस वो लोग दूसरी जगह से शिफ्ट होकर के यहाँ पे इंडिया में सेटल हुए हैं, यानी रहना चालू करे हैं. वी केम फ्रॉम द जमशेद इज टेलिंग टू भरत दैट वी पारसीज आर अ स्मॉल कम्युनिटी, कि हम पारसी एक क्या है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है पारसियों का. वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड इन गुजरात. हम लोग कहाँ से आए? वी केम फ्रॉम ईरान and settled in Gujarat. Now we born and bottom in Iran, but nowadays we settled in Gujarat. We worship fire and our temple is called Agyari, that is fire temple. Now which god is they are worshipping? That they are worshipping फायर, जो आग है, अग्नि देवता है, वो उनकी क्या करते हैं, वो उसकी आराधना करते हैं. एंड आवर टेम्पल इज़ कॉल्ड अग्यारी, और उनके जो मंदिर होते हैं, जैसे हम लोग के मंदिर होते हैं, मुस्लिम्स के मॉस्क्यूज़ रहते हैं, क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं, तो वैसे उनके जो फायर टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं, उस टेम्पल्स को अग्यारी के नाम से बोला जाता है. इट मीन्स फायर टेम्पल, यानी अग्नि देवता का टेम्पल. वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स टू सेक्रेट फायर एंड रिसाइट प्रेज. व्हाट दे आर यूज टू ऑफर टू देयर गॉड्स. बेसिकली हम लोग भी वही करते हैं, जो सैंडलवुड स्टिक्स होती हैं, सैंडलवुड अगरबत्ती नहीं होती है, वही सैंडलवुड स्टिक, जो सैंडल से बनी, चंदन से बनी हुई अपनी स्टिक्स ऑफर करते हैं, मतलब जलाते हैं टू द सेक्रेट फायर, जो भगवान है हमारे अग्नि देवता हैं. एंड रिसाइट प्रेज, और क्या करते हैं, प्रार्थना गाते हैं. वी व्हाट दे यूज टू ऑफर प्रेयर्स करते हैं. और जो अगरबत्ती हैं, जो किससे बनी रहती हैं, चंदन से बनी हुई अगरबत्तियों से वो लोग पूजा पाठ करते हैं. मैन एंड चिल्ड्रंस कवर देयर हेड्स विथ स्मॉल कैप्स एंड वुमेन कवर देयर हैंड्स विथ साड़ीज. नाउ व्हाट देयर आउटफिट्स. मैन जो जेंट्स है और जो चिल्ड्रंस हैं, वो अपने क्या करते हैं, अपने जो हेड्स हैं उसको वाइट टोपी से या स्मॉल कैप से कवर करते हैं. और जो लेडीज़ हैं, कवर देयर हेड्स विथ साड़ीज़, और वो क्या, साड़ी पहनती हैं, और अपना माथा जो है उसको किससे कवर करती हैं, विद अ साड़ीज़. व्हाट देयर आउटफिट्स फॉर मैन. मैन wears and covers their heads with small cap. Basically they are wearing white clothes, वो white clothes पहनते हैं. और जो उनका जो टर्बन रहता है, जो पगड़ी, जो टोपी रहती है, वो छोटी छोटी स्मॉल कैप्स रहती है. और जो लेडीज़ होती है वो साड़ी पहनती है और सर ढकती हैं. वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर. अभी उनका न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं, तो वो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स क्या देते हैं, कि साल मुबारक, एंड विश ईच अदर, कि नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं. वैसे ही वो लोग साल मुबारक बोलते हैं. Now we are moving ahead on Pateti. Everyone wakes up early, gets ready and wears new clothes. What their usual day-to-day life on the day of Pateti? On Pateti, most of everyone wakes up early. सब लोग जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं. And what they used to wear, they are wearing new clothes. उस दिन वो जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं और नए कपड़े डालते हैं. वी डेकोरेट आवर हाउसेस एंड स्टेप्स एट द एंट्रेंस विथ चॉक एंड कलर पाउडर इन डिफरेंट शेप्स जस्ट लाइक रंगोली एंड विद द फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स. नाउ हियर what they used to do on the day of Pateti, they usually decorate their houses. वो अपने हाउस को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं. एंड स्टेप्स टू, और जो सीढ़ियाँ हैं उसको भी डेकोरेट करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं. जैसे दिवाली हम लोग का बहुत बड़ा फेस्टिवल्स होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं और हर जगह डेकोरेशंस करते हैं. एंड स्टेप्स एट द एंट्रेंस पे जो स्टेप्स बनी रहती हैं, चौखट बनी रहती है, उसको चॉक्स और कलरफुल पाउडर्स से क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करते हैं. जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं, या तो रंगोली कलरफुल पाउडर से भी बनती है, या तो फिर फ्लावर्स या फूलों से भी
बनती है. तो what they used to do on the day of Pateti, they decorate the entrance houses as well as the entire house with chalk and colored powder in different. They are forming different shapes. They are making रंगोलीज विद द फ्लावर्स और वेरी एंड अदर गार्लैंड्स. जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो सब यूज़ करते थे एंट्रेंस पे, और पूरे घर में वो रंगोली बनाते थे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की रंगोली बनाते थे कलरफुल पाउडर से. समवेयर दे आर यूजिंग फ्लावर्स एंड समवेयर दे आर यूजिंग दी गार्लैंड्स. जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो भी यूज़ करते थे. नाउ on this day special dishes are prepared. Parsi food is very delicious. So जैसे हमारे घर में होली, दिवाली, दशहरा, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम्स बनते हैं. जैसे होली रहे तो गुजिया बनता है, रसगुल्ला बनता है, गुलाब जामुन बनते हैं. दिवाली है तो डिफरेंट टाइप्स के पेड़े बनते हैं, काजू कतरी बनती है. वैसे ही पारसीज़ में बहुत से स्पेशल डिशेस दे आर प्रिपेयरिंग एंड पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स यमी. तो पारसीज फूड क्या होते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं. वी प्रिपेयर रावा फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर एंड डेकोरेट अ वैरायटी ऑफ डिशेज विद फ्राइड आमंड्स एंड रेजिन्स. नाउ हियर व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग, रवा मीन्स जो हलवा होता है, रवा का ही हलवा होता है हमारे यहाँ बेसिकली, बट वो उनको रवा बोलते हैं. दे आर मेकिंग फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर एंड डेकोरेट अ वैरायटी ऑफ डिशेस. बहुत सारी वैराइटीज़ खाने की डिशेस की बनती है और वो लोग स्पेशली रवा बनाते हैं जो सूजी, मिल्क और शुगर से बनता है. और जो बहुत सारी खाने की डिशेस होते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स एंड रेजिन्स डालते हैं, स्प्रेड करते हैं. नाउ वी विजिट ईच अदर्स हाउस एंड गिव गिफ्ट्स एंड फूड टू पुअर Parsi families. What they used to do, what they are doing ऑन द डे ऑफ पतेती वाले दिन वो एक दूसरे के घर जाते. जैसे हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन दिवाली के जो नेक्स्ट डे होता है तो उसमें दूसरों के घर जाते हैं एंड वी आर टेलिंग एंड वी आर गिविंग गिफ्ट्स टू आवर बिलव्ड वंस. एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. वैसे ही पारसीज क्या करते हैं, जो पुअर फैमिलीज़ रहती हैं तो उनको गिफ्ट्स देते हैं और खाने का आइटम देते हैं जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं. From an early age, we children learn the importance of sharing with others. Men and women mix freely with each others. Now he is telling that from an early age, बहुत पहले से we children learn the importance of sharing. कि हमको शेयर करके ही हर चीज़ करनी चाहिए. ये इस चीज़ का हम लोग क्या हुआ इम्पोर्टेंस बहुत पहले से समझते आ रहे. इसके लिए हम लोग अपनी न्यू ईयर फेस्टिवल्स में जो गरीब हैं, जो गरीब पारसी फैमिलीज़ को फूड देते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही शेयरिंग एंड केयरिंग वाला कॉन्सेप्ट अपनाते आए हैं. मैन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर. जितने भी जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, वो ईजिली दूसरों से मिक्सअप हो जा रहे हैं. आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स in Assam. Now Jamshed is asking to his friend Bharat, I am also interested. मुझे भी ये जानने में बहुत अच्छा फील होगा कि तुमने अपना फेस्टिवल जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली बिहू, वो कैसे सेलिब्रेट किया. आई होप यू विल रिप्लाई सून. सो इन योर कंटेक्स्ट आई विल गेट योर रिप्लाई सून. मैं तुम्हारे लेटर्स का वेट करूँगा और मुझे ये होप है कि तुम बहुत जल्दी मुझे लिखोगे. सो विथ लव जमशेद, तुम्हारा प्रिय, योर फ्रेंड, योर डियरेस्ट फ्रेंड, दैट इज़ जमशेद. So here are some question answer related to this particular letters that answer the following questions. Where did the Parsis come from? So what is the answer of this question? The Parsis came from Iran and now they are settled down in Gujarat. Now the next question, whom do the Parsis worship? Name the temple. What they worship? The Parsis worship fire. The temple is called Agyari or
और दी फायर टेम्पल्स, पारसीस क्या करते हैं, फायर की जो अग्नि देवता है उसकी आराधना करते थे और उनके टेम्पल्स का नाम क्या है, अग्यारी. वॉट डू द पारसी ऑफर टू द सेक्रेड फायर, वॉट डू मैन वेयर वाइल ऑफरिंग, वॉट इज द थर्ड क्वेश्चन, the third question is that what do men wear while offering prayers, usually men wear small caps with offering while offering prayers के टाइम क्या होता था, तो वो लोग क्या पहनते, मेंस जितने भी थे वो एक स्मॉल कैप्स को अपने हेड पे प्लेस ऑन करते थे. Now what is the fourth question, what are the special dishes prepared on Parsis New Year. Now rava is prepared from suji, milk and sugar. These बेसिकली वो लोग वेराइटी ऑफ डिशेस फॉर्म करते थे, बट रवा जो है वो स्पेशली वो लोग क्या करते थे, बनाते थे. ना वॉट डू द पारसी चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एन अर्ली एज से उन लोग की क्या आदत बन गई थी, वो लोग एक दूसरे से शेयर करने की चीज़, शेयर करना बहुत अच्छे से समझ चुके थे. फ्रॉम एन अर्ली एज द पारसी चिल्ड्रंस लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विद अदर्स. नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे स्टार्टेड preparing themselves what are the importance of sharing. वो एक दूसरे को चीज़ों क्या करते थे, एक दूसरे को वो लोग शेयर करते थे. So hope you will understand this video lectures. Keep on writing your notes which I have provided in the form of PDFs. Learn this chapters. It is a very interesting chapter. Thank you and have a nice day.